Hello, our listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, What a delight for us to know that you are there tuning in to listen to this program. हम जानकर बहुत आनंदित हैं कि आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। It is my prayer that God is using this series of messages to bless your life. ये मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस संदेश श्रृंखला का इस्तेमाल आपके जीवन को आशीषित करने के लिए कर रहा हो And to some of you may discover the Lord Jesus Christ for the first time. और आप में से कई पहली बार प्रभु यीशु मसीह को जान लें। Today I want to begin by telling you a true story. आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ। A story that is told of a simple shepherd who was appointed a prime minister of Persia. एक साधारण से चरवाहे की कहानी जो फारस का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। The king of Persia appointed the shepherd to that position because of his faithfulness. फारस के राजा ने उस चरवाहे को इस पद पर उसकी विश्वास योग्यता के कारण नियुक्त किया। The other cabinet ministers were angry. इससे दूसरे राजमंत्री क्रोधित थे। They who came from upper class, वो मंत्री जो ऊंचे स्तर से थे, those who had higher education, वो जिनके पास ऊंची पढ़ाई थी, those who were refined and sophisticated, वो जो मंझे हुए और कुटिल थे, they were master politicians. वो अनुभवी राजनीतिज्ञ थे। Surely one of them should have been the prime minister. निश्चय ही उन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। And out of jealousy, they conspired to bring some sort of accusation against the king's own choice for prime minister. और जलन की वजह से उन्होंने राजा के अपने चुने प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई अभियोग लगाने की साजिश रची। They began to watch the prime minister very closely. उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक प्रधानमंत्री पर नजर रखना प्रारंभ कर दिया। They watched his movements. उन्होंने उसकी चाल ढाल पर नजर रखना शुरू किया। They watched his comings and his goings. उन्होंने उसके आने जाने पर नजर रखी। They found nothing objectionable, उन्हें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, except that once a week he would enter a little room which he had kept locked and would shut himself in that room for an hour each week. बस बजाय इसके कि सप्ताह में एक बार वो एक छोटे से कमरे में जाता जो उसने बंद रखा था और हर सप्ताह 1 घंटे के लिए खुद को उस कमरे में बंद रखता। The noblemen saw a sinister reason behind this action, so they informed the monarch of this unusual behavior. उन कुलीन मनुष्यों को इसके पीछे कोई संदिग्ध कारण नजर आया तो उन्होंने उसके इस अजीब व्यवहार की शिकायत सम्राट को कर दी। They told the king that they were certain that in the room the prime minister was hoarding all of the king's precious possessions that he must have stolen. उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें यकीन है कि प्रधानमंत्री उस कमरे में राजा की वो सब बहुमूल्य चीजें जमा कर रहा है जो उसने चुराई होंगी। The king doubted their story, but nonetheless he gave them permission to break in and search the room. राजा को उनकी कहानी पर शक तो हुआ तो भी उसने उन्हें कमरे का ताला तोड़कर तलाशी लेने की अनुमति दे दी। To their utter amazement, the only thing they found in that locked room was a small bundle that was containing a dilapidated pair of shoes and an old robe. वो भटक रह गए जब उन्हें उस बंद कमरे में एक छोटी सी गठरी मिली जिसमें टूटे हुए जूतों का एक जोड़ा और एक पुराना कपड़ा था। When he was brought before the king, जब उसे राजा के सामने लाया गया, the prime minister was asked why had he kept these two items in a locked up room. और जब प्रधानमंत्री से पूछा गया कि उसने इन 2 चीजों को ताला लगे कमरे में क्यों रखा, His reply was very simple. उसका उत्तर बहुत ही साधारण था। I wore those things when I was a shepherd. मैं इन चीजों को पहनता था जब मैं चरवाहा था। And once a week I go into the room and look at them, lest I should forget what I once was. और मैं सप्ताह में एक बार जाकर इन चीजों को देखता था ताकि मैं भूल ना जाऊं कि एक समय मैं क्या था। And how unworthy I am of all the kindness and the honor that your majesty has bestowed upon me. और मैं उस सारी दया और सम्मान के लिए कितना अयोग्य हूं जो महाराज ने मुझे दिया है। What a contrast is this attitude with the attitude of the full-day laborer in Jesus' parable of the vineyard. ये व्यवहार यीशु के दाख की बारी के दृष्टांत में पूरे दिन के मजदूरों के व्यवहार से कितना अलग है। For those of you joining these broadcasts for the first time, we are in the midst of a series of selected parables called The Point of the Story. आप जो पहली बार इन प्रसारणों में सम्मिलित हो रहे हैं, हम चुने हुए दृष्टांतों की संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं जिसका नाम है कहानी की शिक्षा। Let's listen to this parable. इस दृष्टांत को सुनिए। स्वर्ग का राज्य उस स्वामी के समान है जो सुबह इसलिए निकला कि मजदूरों को अपनी दाख की बारी में काम करने के लिए लगाए।
उसने प्रति मजदूर 1 रुपया प्रतिदिन ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर सुबह लगभग 9 बजे जब वो बाहर आया तो दूसरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, जो ठीक है वही मैं तुम्हें दूंगा। और वे चले गए। फिर 12 बजे और 3 बजे के लगभग उसने बाहर निकलकर वैसा ही किया। लगभग 5 बजे फिर बाहर निकलकर उसने दूसरों को वहां खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहां दिन भर बेकार क्यों खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, क्योंकि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। संध्या होने पर दाख की बारी के स्वामी ने प्रबंधक को बुलाकर कहा, मजदूरों को बुला और अंत में आने वालों से आरंभ करके पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दे। लगभग 5 बजे संध्या समय जो मजदूरी पर लगाए गए थे, जब वे आए तो उन्हें 1-1 रुपया मिला। जब पहले लगाए गए मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि उन्हें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1-1 रुपया ही मिला। जब उन्हें रुपया मिला तो वह यह कहकर स्वामी पर कुड़कुड़ाने लगे, ये जो बाद में आए इन्होंने तो 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे ही बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और कड़ी धूप सही। पर उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, मित्र, मैं तेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तूने मेरे साथ 1 रुपया मजदूरी तय नहीं की थी? जो तेरा है उसे ले और चला जा। यह मेरी इच्छा है कि मैं जितना तुझे दिया है उतना ही इस बाद में आने वाले को भी दूं। क्या मेरे लिए उचित नहीं कि जो मेरा है उससे मैं जो चाहूं सो करूं? क्या मेरा उदार होना तेरी आंखों में खटकता है? इस प्रकार जो अंतिम है वे प्रथम होंगे और जो प्रथम है वो अंतिम होंगे। In this parable, Jesus was talking to his listeners about a common everyday recurrence. इस दृष्टांत में यीशु अपने सुनने वालों से प्रतिदिन होने वाली आम क्रिया के बारे में बात कर रहा था। Every day, men went out early in the morning and waited in the labor exchange for a landowner or a herd keeper to come and hire them for a day. प्रतिदिन मजदूर बाजार में जाकर जमींदार या मजदूर को किराए पर ले जाने वाले की प्रतीक्षा करते थे कि वो आएं और उन्हें पूरे दिन के लिए मजदूरी पर ले जाएं। A normal working day was 12 hours. आम काम का दिन 12 घंटे का था। It began at 6 in the morning and ended at 6 in the evening. ये सुबह 6 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक होता था। These men made a denarius or a drachma, or an equivalent of today's money would be about 1 Egyptian pounds for a full day's work. इन मजदूरों को पूरे दिन के काम के लिए 1 दिनार या आज के पैसे के हिसाब से मिस्र के $1 के बराबर मिलता था। With that, they fed their children with the most basic food, and that was about it. इससे वो अपने बच्चों को सबसे साधारण भोजन दे पाते और बस। Jesus said that the vineyard owner came in first thing in the morning around 6 a.m. यीशु ने कहा कि दाख की बारी का स्वामी आया सबसे पहले सुबह के 6 बजे and hired some of the men and sent them into the vineyard after agreeing on the going price for 1 denarius. और कुछ मनुष्य को लेकर 1 दिनार के हिसाब से उन्हें दाख की बारी में लगाया। Then at 9 a.m. he hired more men and sent them on. फिर सुबह 9 बजे उसने कुछ और मजदूरों को लेकर काम पर लगाया। Then about 12 noon he hired yet more men and sent them on to the vineyard. फिर तकरीबन दोपहर 12 बजे उसने कुछ और मजदूरों को लेकर दाख की बारी में भेजा। And then finally around 5 p.m. with some more people. और फिर अंततः 5 बजे जब सिर्फ काम का 1 घंटा ही बचा था, उसने कुछ और लोगों को मजदूरी पर लगाया। Vineyards were mostly planted on terraced hillside where the land is not as fertile as in the valley below. दाख की बारियां अक्सर पहाड़ी टीलों पर लगाई जाती थी, जहां जमीन उतनी उपजाऊ नहीं थी जितनी के नीचे खाई में। So carrying some good soil uphill was a known to be back-breaking work. तो अच्छी मिट्टी को ऊपर पहाड़ पर ले जाना ये कमर तोड़ने वाला कार्य समझा जाता था। But the big events in the vineyards have always been the harvest time, परंतु दाख की बारी में बड़ा कार्य हमेशा कटनी का समय था, which must be done by September, which is still very hot time of the year. जो सितंबर महीने में ही करना होता था, जो कि वर्ष का अभी भी काफी गर्म समय होता था। Usually laborers who worked in the vineyards were near the bottom of the socio-economic level. अक्सर दाख की बारी में काम करने वाले मजदूर बहुत ही गरीब तबके के होते थे। They worked from job to job and they got paid at the end of each day. वो हर दिन अलग अलग कार्य करते थे और दिन के अंत में अपनी मजदूरी पाते थे। And there were no guarantees that they would have a job the next day. और इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि अगले दिन उन्हें काम मिलेगा। Because they were unskilled and desperate for work, they were often vulnerable and taken advantage of by dishonest foremen.
क्योंकि वो अयोग्य और अनपढ़ और गरीब होते थे, इसलिए वो काम चाहते थे और कई बार इसी वजह से बेईमान प्रबंधक उनका नाजायज फायदा उठाते थे। I want you to notice something very important in this story. मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर गौर करें। The landowner does not offer a particular amount of money to the men whom he hired late. जमींदार उन मजदूरों से कुछ खास मेहनताने की बात नहीं करता था जिन्हें वो बाद में काम पर लगाता था। He only tells the first group how much he will pay them. वो केवल पहले समूह को ही बताता था कि वो उन्हें कितने पैसे देगा। To the rest, he says, I will do the right thing by you. बाकियों से वो कहता, मैं तुम्हें उचित मेहनताना दूंगा। So at the end of the day, pay time comes. तो दिन के अंत में मेहनताना देने का समय आता। The owner pays the ones who worked for 1 hour first, मालिक ने उनको पहले मेहनताना दिया जिन्होंने 1 घंटा काम किया था, and he gives them a denarii. और उसने उन्हें 1 दिनार दिया। Then he pays all the others exactly the same. फिर उसने बाकी सबको भी बराबर पैसा दिया। The laborers complain. मजदूरों ने शिकायत की। Now listen to what I'm going to tell you. अब सुनिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। Be careful when you begin to feel sorry for yourself like these laborers. सावधान रहिए जब आप इन मजदूरों के समान अपने आप पर खेद व्यक्त करना शुरू करें। Someone said being overcome with envy is like running into the ocean. किसी ने कहा है ईर्ष्या को हावी होने देना भागकर समुद्र में जाने जैसा है। The deeper you go in, the harder it is to get out. जितना आप गहराई में जाते हैं बाहर आना उतना ही कठिन होता जाता है। Let me put this parable in context. मैं इस दृष्टांत को असली संदर्भ में बताना चाहता हूं। In the last few verses of Matthew 19, Peter was displaying the attitude of one of those 12-hour laborers. मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय के अंतिम कुछ पदों में पतरस उन 12 घंटे के मजदूरों में से ही किसी एक के समान व्यवहार दिखा रहा था। Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?" पतरस ने उसे उत्तर दिया, हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, फिर हमें क्या मिलेगा? Jesus makes them a promise regarding rewards, but then he goes on immediately into telling them about salvation. यीशु प्रतिफल के बारे में उनसे एक वादा करता है, परंतु फिर वो बाद में तुरंत उन्हें उद्धार के बारे में बताने लगता है। Jesus is not talking about rewards here, but he is talking about salvation. यहाँ यीशु प्रतिफलों के बारे में बात नहीं कर रहा है, परंतु वो उद्धार के बारे में बात कर रहा है। The problem with some Christians who have been believers for many years is that they get jaded in their spirits. कुछ मसीहियों के साथ समस्या जो कई वर्षों से मसीही हैं, ये है कि वो अपनी आत्माओं में अड़ियल हो जाते हैं। They take their salvation for granted. वो अपने उद्धार को हल्का समझने लगते हैं। They begin to think that there is something special about them. वो ये सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि उनमें कुछ खास बात है। They easily develop a self-righteous Pharisaic attitude. उनके अंदर आसानी से आत्मधर्मी फरीसी व्यवहार पैदा हो जाता है। Someone said 1 hour of fretting will drain more of your vitality than a week of work. किसी ने कहा है 1 घंटे का कुड़ना आपके 1 सप्ताह तक काम करने से ज्यादा बल को खा जाता है। 1 minute of rankling jealousy and knowing envy will hurt you more than a drink of poison. 1 मिनट की तीव्र जलन और तीव्र ईर्ष्या आपकी जहर के गिलास से ज्यादा हानि करती है। So Jesus says to the ones who have been complaining and murmuring out of jealousy, तो यीशु उनसे जो जलन के कारण शिकायतें करते और कुड़कुड़ाते आ रहे हैं, wasn't it our agreement for you to work for a full day for a denarius? क्या तुम्हारे साथ तय नहीं हुआ था कि तुम 1 दिनार पर सारा दिन काम करोगे? Are you questioning my grace? क्या तुम मेरे अनुग्रह पर सवाल उठा रहे हो? Why do you question my generosity? तुम मेरी उदारता पर सवाल क्यों उठाते हो? So, what is the point of this story? तो इस कहानी की शिक्षा क्या है? The point of the story is this. कहानी की शिक्षा ये है, God is a sovereign God. परमेश्वर सर्वोच्च परमेश्वर है। And whether the person is saved at the age of 7 or at the age of 70, both will go to heaven. और कोई व्यक्ति चाहे 7 वर्ष की आयु में उद्धार पाता है या 70 वर्ष की आयु में, दोनों स्वर्ग जाएंगे। Those who see themselves as deserving more of God's grace because of their early salvation are blinded with jealousy and envy. वो जो पहले उद्धार पाए होने की वजह से खुद को परमेश्वर के अधिक अनुग्रह का हकदार मानते हैं, उन्हें जलन और ईर्ष्या ने अंधा कर रखा है। Those early workers were jealous and envious, not because of reason, but because of selfishness. वो पहले आए हुए मजदूर किसी कारण से जलन और ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, परंतु स्वार्थ की वजह से। And selfishness is the root of jealousy. और स्वार्थ ही जलन की जड़ है। At the very core of envy
you will find selfishness and self-centeredness. ईर्ष्या के बिल्कुल केंद्र में आप स्वार्थ और आत्म केंद्रिता को पाते हैं. The accusation of the landowner of unfairness is not grounded on love for justice. दाख की बारी के स्वामी पर अन्याय के दोष का आधार न्याय के लिए प्रेम नहीं था, but based on self-serving. परंतु आत्म केंद्रिता पर आधारित था. What they received was based on the agreement that they made and the contract they signed. जितना उन्हें मिला था वो उसी आधार पर और उसी अनुसार था जितना उन्होंने तय किया था. Jealousy and envy are very destructive things in the life of a Christian. एक मसीही के जीवन में जलन और ईर्ष्या बहुत ही विनाशकारी बातें हैं. One way to test this is by listening to yourself and see whom you criticize the most. इसे जानने का एक तरीका है खुद की आवाज सुनने और देखने के द्वारा कि आप सबसे अधिक किसकी आलोचना करते हैं. Because people always criticize the one whom they secretly envy. क्योंकि लोग हमेशा उसी की आलोचना करते हैं जिससे अंदर से वो ईर्ष्या रखते हैं. Envy is the mother of the critical spirit. ईर्ष्या आलोचक आत्मा की मां है. Ask yourself this question. अपने आप से ये प्रश्न पूछिए. When you see someone who is more blessed than you are, do you rejoice for them? जब आप किसी को देखते हैं जो आपसे ज्यादा आशीषित हैं, तो क्या आप उनके लिए आनंदित होते हैं? When you see someone saved later in life, do you rejoice with them? जब आप किसी को देर से उद्धार पाया देखते हैं, क्या आप उनके लिए आनंदित होते हैं? When you see someone more gifted than you are you glad for them? जब आप किसी को अपने से अधिक प्रतिभाशाली देखते हैं, तो क्या आप उनके लिए खुश होते हैं? When you see someone succeed where you have failed, do you give thanks? जब आप किसी को वहां सफल होता देखते हैं जहां आप असफल रहे, तो क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? What Jesus is teaching us in this parable is this. यीशु इस दृष्टांत में हमें जो सिखा रहा है वो ये है God the Father is the landowner. कि परमेश्वर पिता जमीन का मालिक है. The foreman is the Lord Jesus Christ. प्रभारी प्रभु यीशु मसीह है. The vineyard is God's kingdom. दाख की बारी परमेश्वर का राज्य है. The laborers are all the believers. मजदूर सभी विश्वासी हैं. And the denaries is eternal life. और दिनार अनंत जीवन है. The work day is the believer's life of service. काम का दिन विश्वासी की सेवा का जीवन है. Jesus is not asking you to go out and run your business this way. यीशु आपसे ये नहीं कह रहा है कि जाओ और अपने व्यवसाय में ऐसा ही करो. No, but this has to do with salvation. नहीं, परंतु इसका संबंध उद्धार के साथ है. God's sovereign principle for salvation is very simple. उद्धार के लिए परमेश्वर का सर्वोच्च सिद्धांत बहुत ही साधारण है. Whoever comes to him in faith through his son shall be saved. जो कोई भी उसके पुत्र के द्वारा विश्वास रखकर उसके पास आता है, वो उद्धार पाएगा. Whether their sins are big or small. चाहे उनके पाप बड़े हों या छोटे. Whether they have sinned for a long time or for a short time. चाहे वो देर से पाप करते आए हैं या कुछ ही समय से. Whether they have long dedicated service or a deathbed conversion. चाहे उन्होंने लंबी समर्पित सेवा की है या मृत्यु छैया पर उद्धार पाया है. Contrast the thief on the cross with John the Apostle. प्रेरित यूहन्ना के साथ क्रूस पर चढ़े डाकू की तुलना कीजिए. The thief on the cross didn't have 1 hour to serve Christ. क्रूस पर चढ़े डाकू के पास मसीह की सेवा करने के लिए 1 घंटा भी नहीं था. Yet the Apostle John lived to serve until he was in his 90s. तो भी प्रेरित यूहन्ना ने 90 वर्ष की आयु तक सेवा की. Both received eternal life. दोनों को अनंत जीवन मिला. This is the point of the parable. ये है दृष्टांत की मुख्य बात या शिक्षा. This parable tells me that as long as a person has a breath, he or she has an opportunity to turn to God through Jesus Christ and be saved. ये दृष्टांत मुझे बताता है कि जब तक किसी व्यक्ति में सांस है, उसके पास यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ओर मुड़ने और उद्धार पाने का अवसर है. Have you prayed for someone and they have not believed yet? क्या आपने किसी के लिए प्रार्थना की और उन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया है? Even though they may be living in their 11th hour? यद्यपि वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं. Take heart. हौसला रखिए. Keep on praying. प्रार्थना करते रहिए. God can bring them to the vineyard even in the 11th hour. परमेश्वर उन्हें 11वें घंटे में भी दाख की बारी में ला सकता है. Are you a seeker or a searcher? क्या आप एक खोजी हैं या तलाशने वाले? Who has begun to think that it may be too late for you to turn your life over to the sovereign king? जिसने ये सोचना शुरू कर दिया है कि शायद अब सर्वशक्तिमान राजा को अपना जीवन देने के लिए आपको बहुत देर हो चुकी है. It is never too late. इसमें कभी देर नहीं होती. You can do that today. आप आज ही ऐसा कर सकते हैं. Invite the Lord Jesus to take you into
His kingdom प्रभु यीशु को आमंत्रित करें कि वो आपको उसके राज्य में ले जाए, by inviting Him into your life. उसे अपने जीवन में आमंत्रित करने के द्वारा। And after you do that, write to us and let us know. और ऐसा करने के बाद हमें लिखें और बताएं। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।